ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ MH1 ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ FBI ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ, ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹਾਰਡ ਬਾਲ। ਇਸ ਦੇ ਥਰੂ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹਾਰਡ ਬਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹਾਰਡ ਬਾਲ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਤੇ FBI ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ। 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ FBI ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹਾਰਡ ਬਾਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਕਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 24 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ 37 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੇ 3 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, 3 ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਤੇ 1 ਨੂੰ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 7 ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ 10 ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹਾਰਡ ਬਾਲ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਰਪ, ਛਾਪੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ 24। FBI ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 1 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੋਕੀਨ, 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, $40,000 ਨਕਦ ਅਤੇ 1 ਦਰਜਨ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਿਰੋਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਤਲ, ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਕੋਕੇਨ, ਹੈਰੋਇਨ, ਨਕਦੀ $40,000, ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ 12। FBI ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੈਟਵਰਕ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। FBI ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਉਰਫ ਸਤਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲਈ $50,000 ਜਾਂ ਲਗਭਗ 43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਹਮਲਾ, ਅਗਵਾ, ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਵਰਗੇ ਆਰੋਪ ਨੇ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 18 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ US ਦੀ FBI, ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਊਂਟੇਡ ਪੁਲਿਸ, ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਪੁਲਿਸ, US ਕਸਟਮਜ਼ ਏਜੰਸੀ, ਡਰੱਗ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ, ਸਪੈਨਿਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। US ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ MH1 ਨਿਊਜ਼। ਆਖਿਰ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹਾਰਡ ਬਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੀ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੈਸਟ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ LN ਰਾਓ, ਪੂਰਵ DCP ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ।
सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर हम बात करें आज सुबह से ही ऑपरेशन हार्ड बॉल काफी ज्यादा चर्चा में है, और मैं आपसे पहले तो यही जानना चाहूंगी कि आखिर कनाडा अमेरिका की तरफ से ऐसी कौन सी एक्टिविटी की गई जिसकी गूंज पूरे इंडिया में फैल गई है? ये ऑपरेशन हार्ड बॉल है क्या? नमस्कार मैम। ये नमस्कार। बहुत ही पुराना एक इशू था जिसमें कि इसके बारे में बताया जा रहा था कि बिश्नोई के जो गैंग के आदमी हैं अमेरिका में रहते हुए काफ़ी क्राइम में इन्वॉल्व हैं। इसमें गोल्डी बरार और दूसरे और साथियों के नाम थे, और हमारी तरफ से इन पर रिक्वेस्ट दिल्ली पुलिस से भी इंटरनेट से इंडिया पुलिस की जो हमारा जो इंटरपोल है उनके थ्रू ये खबर जा चुकी थी। उनके ठिकाने बताए गए थे क्योंकि वहाँ पे कई इंसिडेंट ऐसे हुए थे जिसमें इंडिया की तरफ से ये बदनामी हो रही थी कि इंडिया के बदमाश जाकर यूएस में ऐसा काम कर रहे हैं। तो ये वाली ये करने के बाद जब ये मालूम हुआ उनको कि ये इनके ठिकाने यहाँ पर हैं, तो उन्होंने एक ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया जिसमें यूएस, कैनेडियन माउंटेन पुलिस, ड्रग एनफोर्समेंट और दूसरे कई एजेंसीज को मिलकर एक ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ है। और उस ऑपरेशन के दौरान बहुत सी अच्छी रिकवरीज भी की हैं, काफ़ी पैसा बरामद हुआ है, कुछ काफ़ी नारकोटिक्स के भी रिकवरी बताई जा रही है, और जो इनके मेन जो शूटर्स थे उनको राउंड अप किया गया है और उनके ऊपर कार्रवाई करी जा रही है वहाँ पर। इसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडिया के जो क्रिमिनल हिस्ट्री है, क्रिमिनल जो बैकग्राउंड के लोग हैं उन पर पड़ेगी। उनको अभी तक ये लोग ये सोच रहे थे कि हम अगर यहाँ से क्राइम करके अगर बाहर भाग जाएंगे, अमेरिका भाग जाएंगे या कनाडा भाग जाएंगे या यूके भाग जाएंगे, जैसे कि बहुत से केसेस में देखा गया है, बहुत से उग्रवादी यहाँ से क्राइम करने के बाद, उग्रवाद की घटनाओं करने के बाद में इन कंट्रीज में जाकर वहाँ शरण ले लेते हैं। अब उनको ऐसा लगेगा कि देखिए भारत की पुलिस के हाथ इतने लंबे हैं कि वहां तक भी जाकर कार्रवाई करवा सकते हैं। नो डाउट कि हम वहां इन्वॉल्व नहीं थे इस ऑपरेशन में, लेकिन जो भी ऑपरेशन हुआ इनपुट हमारी तरफ से थी। हमारी तरफ से बताया गया था कि कौन कौन आदमी किस किस प्रकार के अपराधों में वहाँ यहाँ इंडिया में लिप्त हैं और वो वांटेड हैं, और उनके पॉसिबल हाइड आउट्स वो भी हमने ही बताए हैं। बाकी उन्होंने जो यूएस की इन्फोर्समेंट एजेंसी यूएन का जो यूएसए का जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और अच्छी इंफॉर्मेशन नेटवर्क करता है। एफबीआई के सौजन्य से वहाँ पर काफ़ी हमारी इंफॉर्मेशन को डेवलप किया गया, और इंफॉर्मेशन डेवलप करने के बाद में इन लोगों पर ज़बरदस्त एक कंसोलिडेटेड एक एफर्ट्स करने के बाद में रेड की गई और जाके इन लोगों को राउंड अप किया गया। और वहाँ की लीगल कानूनी जो कार्रवाई जो यूएस में जो कानून है उसके हिसाब से वो कानूनी कार्रवाई की जा रही है, और मैं समझता हूँ इसका असर यहाँ पर इंडिया में काफ़ी अच्छा पड़ेगा। जी जी, आपके कहने का मतलब है कि जो ऑपरेशन ये एफबीआई की तरफ से किया गया, अमेरिका कनाडा मिलके उन्होंने ऑपरेशन किया, तो कहीं ना कहीं जो इंडियन पुलिस थी उन्होंने भी सपोर्ट किया है, उन्होंने भी जानकारियां जो भी चाहिए थी वो दी है। और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि नेक्स्ट मूव क्या होगा, अब आगे क्या किया जाएगा? क्योंकि गोल्डी बरार की बात करें तो गोल्डी बरार तो पहले से ही फरार है, अभी पता ही नहीं है कि वो कनाडा में है, यूरोप में है या अमेरिका में है। और दूसरी तरफ से लॉरेंस बिश्नोई वो इंडियन कस्टडी में है, तो अब आगे क्या मूव देखा जाएगा? देखिए, लॉरेंस बिश्नोई तो इंडिया में कस्टडी में है, और गोल्डी बरार का भी अगर वहां से फरार है कोई ऐसी बात नहीं, और वहां पुलिस के भी हाथ बड़े लंबे हैं जैसे इंडिया पुलिस के रहते हैं, वो भी अपनी कार्रवाई इसमें जारी रखेंगे। और मैं समझता हूँ जल्द से जल्द इतने ऑपरेशंस करने के बाद में जितने लोगों को राउंड अप किया है, रिकवरी की है, काफ़ी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, इस प्रकार की और इन्फॉर्मेशन एनालाइज करने के बाद, पूरी इन्फॉर्मेशन को कंपाइल करने के बाद में वहाँ की पुलिस है डेफिनेटली गोल्डी बरार और उनके और जो साथी भागे हुए उनको भी पकड़ने में कामयाबी मिलेगी। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई होगी, और क्योंकि एफबीआई का तो और भी ज़्यादा तंत्र बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपने देखा होगा ओसामा बिन लादेन को भी कहाँ से कहाँ उन्होंने ढूंढ निकाला था, तो गोल्डी बरार तो क्या चीज़ है उनके लिए। मेरे ख्याल से जल्द उनकी कार्रवाई होगी। जी जी, मतलब गोल्डी बरार के ऊपर तो बहुत बड़ी, अगर इनाम राशि की बात करें तो करीब 43 लाख की इनाम राशि जो रखी गई है, और
यही है, जैसे आपने बताया कि एफबीआई कोशिश करेगी अब गोल्डी बराड को ढूंढने की, और दूसरी तरफ क्या सर ये भी हो सकता है क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई तो इंडियन कस्टडी में है, यहाँ पे भी उस पर बहुत सारे केसेस हैं, पर क्या अभी अमेरिका जो है पुलिस है, एफबीआई है, जो भी एजेंसी है, वो लॉरेंस बिश्नोई को भी अमेरिका लेकर जा सकती है जांच के लिए? देखिए, अगर उनकी जांच में इनको लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई का रोल है यूएस के किसी केस में, तो डेफिनेटली जैसे हम वहां से एक्स्ट्राडाइट कराकर इंडिया ला सकते हैं, क्योंकि इंडिया के केस में कोई इन्वॉल्व होता है तो यूएस में भी, क्योंकि हमारा कॉमन हमारा समझौता है कि कोई भी जो भी अपराधी इधर उधर छुप जाते हैं, वहाँ का अपराधी यहाँ पर है तो हम उनको दे देंगे, और यहाँ का अपराधी अगर वहाँ के किसी केस में इन्वॉल्व है तो वो वहाँ से ले सकते हैं। तो बट वो कानूनी प्रक्रिया है, उसको पूरा करना पड़ेगा। वो करने के बाद में यस डेफिनेटली यहाँ के केसेस खत्म होने के बाद लॉरेंस बिश्नोई को भी वहाँ पर लेकर जाया जा सकता है, अगर वो वहाँ पर किसी केस में इन्वॉल्व है तो। ये जरूरी कंडीशन है। जी जी। अच्छा, अब सर मैं आपसे जानना चाहूँ, क्योंकि अमेरिका अगर ये इतनी बड़ी स्ट्राइक करता है, कहीं ना कहीं असर तो इसका इंडिया में होगा ही, जैसे आपने भी बताया, क्योंकि चाहे वो क्राइम अमेरिका में हो रहा है, चाहे कनाडा में हो रहा है कहीं, लेकिन असर तो उसका जो है हमारे इंडिया, हमारे पंजाब, हमारे हरियाणा में ही देखने को मिलता है। डेफिनेटली ये है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी क्राइम किसी भी देश में अगर होता है और वहाँ के क्राइम में इन्वॉल्वमेंट हमारे लोगों की होती है, किसी भी स्टेट के लोगों की होती है, चाहे पंजाब का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे और कहीं का हो, तो इफेक्ट तो यहाँ भी पड़ता है। और खासतौर से बदनामी हमारे देश की होती है कि यहाँ के लोग जाकर ऐसे ही वहाँ पर क्राइम करते हैं, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। इनका असर हमारे यहाँ भी पड़ता है, लेकिन उसका ये पकड़े जाने का जो दूसरा असर है वो हमारे यहाँ के अपराधी जो ग्रुप में उनको पता लगेगा, अपराधी जो जिसे कहते हैं क्रिमिनल वर्ल्ड में ये मैसेज जाएगा कि चाहे वो कितना भी कोशिश करें, वहाँ भी अगर जाके छुपेंगे तो वहाँ भी कार्रवाई करते हैं, क्योंकि इंडिया और यूएस की जो संधि है आपस में कोऑपरेशन की थ्रू इंटरपोल, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वो कोई भी अपराधी कहीं भी जाकर छुपेगा तो उसको पकड़ा जाएगा। इसका डेफिनेटली असर पड़ेगा हमारे भारत में भी, अपराधी जो क्रिमिनल वर्ल्ड के लोगों में इसका असर पड़ेगा। जी। अच्छा सर, क्योंकि अभी एफबीआई के सामने आपको क्या लगता है, बहुत सारे चैलेंजेस भी तो आने वाले हैं, कोई इजी नहीं है, क्योंकि चाहे गोल्डी बराड की बात करते हैं, चाहे लॉरेंस बिश्नोई की बात करते हैं, चाहे जग्गू की बात करते हैं, तो ये बहुत बड़े गैंगस्टर्स हैं, इनका बहुत बड़ा गैंग है, तो इतना ईजी तो नहीं होगा इनको पकड़ पाना। क्या कौन से चैलेंजेस आपको लगता है कि इनको फेस करने पड़ेंगे? देखिए, कोई ऐसे बड़े क्रिमिनल्स होते हैं, उनको पकड़ने में थोड़ी मेहनत तो जरूर करनी पड़ती है, लेकिन ये कहना कि बिल्कुल संभव है तो मैं नहीं मानता। कोई भी चीज असंभव नहीं है पुलिस के आगे। अगर पुलिस चाहे तो कहीं से असंभव काम को कर सकती है, बशर्ते कि उसमें टाइम ज्यादा लग सकता है। तो ये चैलेंज जरूर है एफबीआई के सामने, क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। कोई भी पुलिस एजेंसी हो, चाहे एफबीआई है, चाहे हमारे इंडिया की आईबी है या RNAW है, इन सब के कोऑर्डिनेशन से ये मैं समझता हूँ एफबीआई इन लोगों को तक पहुंचने में काफी कामयाब हो जाएगी। और इंटेलिजेंस जिसे कहते हैं खुफिया तंत्र, चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी, जैसे हमारे यहाँ का है, विदेशों में RNAW का है, जिसे कैबिनेट सेक्रेटरी अंडर होता है। इंटरनल हमारी इंफॉर्मेशन है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के थ्रू होती है। इसी प्रकार एफबीआई की जो खुफिया तंत्र है वो उनका अपना यूएस का है, और उनका इन्वेस्टिगेशन जो है वो फील्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो नो डाउट चैलेंजेस होने के बावजूद भी वो इन लोगों को पकड़ने में कामयाब रहेंगे, ये मेरा मानना है। जी, पर अगर मैं इंडिया की बात करूं, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई मैंने जैसे पहले बोला ऑलरेडी यहाँ की कस्टडी में है, गोल्डी बराड वो भी पंजाब से जुड़ा हुआ है, लेकिन अभी फिलहाल किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है, अमेरिका में है, कनाडा में है, यूरोप में है, कहाँ पर है। पर अभी अमेरिका को, कनाडा को एफबीआई थ्रू जो भी ये जांच एजेंसी की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, तो अभी इंडियन पुलिस, इंडियन गवर्नमेंट की मदद की जरूरत भी तो पड़ेगी। कैसे सपोर्ट करेगी इंडियन गवर्नमेंट उनको? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो सपोर्ट करने का जो चैनल है एक ही है, इंटरपोल। जो इन्फॉर्मेशन यूएस की एफबीआई को चाहिएगी तो वो इंटरपोल के थ्रू हमारे से मांगेंगे, और हम उनको इंटरपोल के थ्रू ही खबर देंगे। इंटरपोल एक होता है इंटरनेशनल पुलिस का एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि कई देशों की पुलिस मिलकर एक बनाती है। वो यूएन का एक हिस्सा है, यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा है, और उसमें ये कमिटमेंट है कि देशों की जो पुलिस है वो आपस में कोऑपरेशन करे, कोऑर्डिनेशन करके, और अपराधियों को पकड़वाने में और उनको ढूंढवाने में
ढूंढवाने में और पकड़वाने में दोनों में मदद करे। और वही मदद का एक हिस्सा है कि अगर एफबीआई को कोई चीज इंफॉर्मेशन चाहिए कि इंडिया से, तो वो देंगे। इंडिया को इंफॉर्मेशन चाहिए कि एफबीआई से, तो वहां से मिलेगी। और वो इंफॉर्मेशन बेस्ड, चाहे वो इंडिया में ऑपरेशन करना हो चाहे यूएस में करना हो, वो फिर ऑपरेशन उस इंफॉर्मेशन बेस्ड होते हैं। और वो ही एक सक्सेस का एक बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है कि कितनी सटीक इंफॉर्मेशन हम दे पाते हैं, कितनी सटीक इंफॉर्मेशन एफबीआई हमको देती है। वही एक सक्सेस का एक प्रकार से पैमाना माना जाता है मैम। जी, तो मतलब आपको क्या लगता है कि एफबीआई की तरफ से ये जो भी कार्रवाई की जा रही है, ऑपरेशन हार्ड बॉल की हम बात करें, तो आगे जो भी गैंगस्टर्स हैं, चाहे वो इंडिया से जुड़े हैं चाहे अमेरिका कनाडा में हैं, तो अभी उन पर हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से शिकंजा जो है वो कसा जा रहा है इस ऑपरेशन के थ्रू? नो डाउट, बिल्कुल। अभी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग शिकंजा कसा जाएगा। अभी तो शुरुआत हुई है। मैं समझता हूँ कि अब ये कुछ ही दिनों की बात है या कुछ टाइम की बात है, ये सारे के सारे अपराधी जितने भी वांटेड रहेंगे उनको पकड़ना अब मुश्किल नहीं रहेगा। क्योंकि एक बात मैं बता दूं, जब ये रेड के दौरान जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है या पकड़े जाते हैं, उनकी इंटरोगेशन होगी। उनकी डिटेल इंटरोगेशन से उनके सारे लिंक पता लगेंगे। बाकी जो लोग कहाँ कहाँ क्या क्या लिंक हैं, उनके यहाँ से मोबाइल नंबर मिलेंगे, उनकी ईमेल आईडी खंगाली जाएगी, उनसे जो डॉक्यूमेंट्स मिले उनसे पता लगेगा, पासपोर्ट्स के बारे में पता लगेगा। अगर वहां से कहीं इधर उधर दूसरे कंट्री में गए तो वहां से पता लगेगा। तो ये बड़ा ही एक लंबा प्रोसेस जरूर है, लेकिन हाँ, पुलिस को काफी कामयाबी मिलने के इसमें चांस लग रहे हैं मुझे। और ये एक बड़ा एक प्रकार से एक कंसोलिडेटेड कोऑपरेशन का एक एफर्ट से जो ये ऑपरेशन हुआ है, इस ऑपरेशन की सक्सेस के लिए मैं बधाई देता हूँ एफबीआई को। और इसमें और आगे सफलता मिलने के पूरे चांस हैं। जी, और सर आपको क्या लगता है, क्योंकि हमारे इंडिया की भी बात करें, इंडिया में भी चाहे नशे की बात करते हैं चाहे गैंगस्टरवाद की बात करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इंडियन जांच एजेंसियों के द्वारा भी आपको लगता है कि कुछ ऐसे ऑपरेशंस करने चाहिए जो कि ये गैंगस्टरवाद पर पूरी तरीके से जो है वो शिकंजा कसा जाए? डेफिनेटली, देखिए, हर स्टेट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि वहाँ के क्राइम को कंट्रोल किया जाए। पुलिस की जो मेन ड्यूटीज वो है कि क्राइम को रोकना, और अगर रुकता नहीं है तो उसको डिटेक्ट करना, यानी पकड़ना, अपराधियों को पकड़कर उसके खिलाफ सबूत इकट्ठी करके कोर्ट में भेजना। ये मेन ड्यूटी होती है पुलिस की। दूसरी प्रकार से दूसरा, जैसे आपने बताया कि कोई भी संगठित अपराध जैसे होता है, ड्रग्स का है या और कोई स्मगलिंग के होते हैं, उनके बारे में अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं। जैसे नारकोटिक्स को रोकने के लिए नारकोटिक सेल बने हुए हैं, हर जिले में बने हुए हैं। दिल्ली की बात मैं करूँ तो दिल्ली में हर डिस्ट्रिक्ट में नारकोटिक सेल है, और एक नेशनल लेवल पे नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है। तो वो पूरे नेशनल लेवल की उसमें उनकी पावर होती है। तो किसी भी स्टेट में अगर ये घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं या ड्रग्स की तस्करी ज़्यादा हो रही है या किसी और प्रकार का अगर कुछ हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए ये पूरी एजेंसी हमारी इंडिया की बड़ी सतर्क कहते हैं। और ऐसी इस प्रकार के ऑपरेशन के सक्सेस होने के बाद हमारी एजेंसीज को भी एक प्रोत्साहन मिलता है और एक प्रकार से सीख मिलती है कि देखिए, यूएस में इतना बड़ा ऑपरेशन हो पाया है, तो हम भी अपने यहाँ पर भी ऐसे ऐसे बड़े ऑपरेशन करके अपराधियों को जल्द से जल्द उनको पकड़कर उनको अपनी जो जगह है, सही जगह है, जेल, वो पहुँचाया जाए। और जो भी इस प्रकार के क्राइम जो करते हैं उनसे निजात, आम पब्लिक को निजात दिलाई जाए। क्योंकि ड्रग्स का जो कारोबार है वो कारोबार बहुत ही हमारे यूथ को, हमारे जो जवान लोग हैं उनको बर्बाद किया जा रहा है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को खराब करे जा रहा है। और इसको रोकने के लिए हमारे यहाँ तत्पर सारी, खासतौर से पंजाब में ज़्यादा बताया जा रहा है। तो पंजाब में पूरी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, और कुछ करी भी गई है और उसको अप्रिशिएट भी किया जाना चाहिए। अगर करें तो पंजाब पुलिस को भी इसमें ज़्यादा सबक मिलेगा, और पंजाब पुलिस को और भी वहाँ से एफबीआई से भी इससे कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन मिल सकती हैं, और वो इंटरपोल के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन लेकर उन इन्फॉर्मेशन पे, उन सूचनाओं के आधार पर पंजाब में और भी ऑपरेशन, बड़े ऑपरेशन किए जा सकते हैं। और डेफिनेटली इसका हमें इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली फायदा होने वाला, क्योंकि चाहे वो क्राइम, जैसे मैंने पहले भी कहा कि क्राइम चाहे कनाडा में हुआ चाहे अमेरिका में हुआ है, लेकिन ये जो गैंगस्टर्स हैं उनके तार कहीं ना कहीं पंजाब से, इंडिया से ही जुड़े हुए हैं। तो चाहे क्राइम कहीं भी हो, असर उसका इंडिया में ही पड़ेगा। इंडिया, क्योंकि अभी जैसे ये पूरे मामले की अगर बात करें तो ये हरदीप सिंह निज्जर मर्डर केस से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जिसके थ्रू कार्रवाई जो है वो एफबीआई के थ्रू की गई है। तो इसका असर कहीं ना कहीं इंडिया पे
ही पड़ता है। तो मैं अभी लास्ट में आपसे जानना चाहूंगी कि अब आपको क्या लगता है कि अभी आगे किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी, किस तरीके से FBI का मूव रहेगा, क्या प्रोसीजर होगा और कितना टाइम इस पूरे ऑपरेशन को लग सकता है? क्योंकि आज एक ही दिन में अगर देखा जाए इतनी जगह पर छापेमारी की गई, एक ही दिन में 24 लोगों को जो है वो गिरफ्तार भी कर लिया गया। देखिए, जो हरदीप सिंह निज्जर का जो केस था वो वहाँ का केस है, तो वहाँ के केस में जितने भी वहाँ के कानून के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और ये जो बड़ा ऑपरेशन हुआ है जिसमें 24 आदमी आपने बताया कि गिरफ्तार किए जा चुके हैं या राउंड अप किए जा चुके हैं, उनकी डिटेल इंटरोगेशन अलग अलग लोगों से अलग अलग उनकी इंटरोगेशन होगी, अलग अलग पूछताछ होगी। और उसके पूछताछ होने के बाद और फिर जो FBI है और ज़्यादा मेरे ख्याल से जो और भागे हुए आदमी हैं जो नहीं मिल पा रहे हैं अभी, उनको पकड़ने में कामयाबी मिलेगी। और उसका असर डेफिनेटली दिल्ली में अपने इंडिया में ही पड़ेगा, क्योंकि जो मैक्सिमम जो इंडियन लोग ओरिजिन के लोग वहाँ पर हैं जो वांटेड हो गए हैं किसी केस में, हरदीप सिंह निज्जर हो या कोई और किसी केस में भी कई जगह शूटिंग हुई है, किसी रेस्टोरेंट पे शूटिंग की है और कहीं कनाडा में जाके उन्होंने किसी इसके शर्मा के जो उसके कॉफी कैफे हाउस पे शूटिंग की है। ये सारी चीज़ें नॉट ओनली US, कनाडा में भी जो ऑफेंस किए जा रहे हैं उनको भी इससे कनेक्ट करके देखा जाएगा, क्योंकि कनाडा और US उनकी आपस में इन्वेस्टिगेशन करने में बहुत जल्दी उनकी कोऑपरेशन होता है। तो वो सारा होने के बाद में मैं समझता हूँ कि वो और ज़्यादा अच्छे से इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी और अच्छे से कार्रवाई होने के बाद में और इसका एक कंसोलिडेटेड एक जो रिजल्ट आएगा पूरी इन्वेस्टिगेशन का FBI के द्वारा की गई इस ऑपरेशन के बाद, वो मैं समझता हूँ बहुत ही सुखद रहेगा, नॉट ओनली विद फॉर USA कनाडा, बट ये हमारे देश के भी क्रिमिनल वर्ल्ड के लोगों के लिए खतरे की घंटी होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सो ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ FBI ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹਾਰਡ ਬਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, 24 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 13 ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, 3 ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਤੇ 1 ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 7 ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਰਪ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ FBI ਜਿਹੜੀ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਅਪਰਾਧ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਤਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ FBI ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੈਸਟ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰਥਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਰਥਕ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਹੋਏਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ FBI ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ MH1 ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।